my dear class 6 students. Today we are going to discuss the top 10 questions that are likely to be asked in your exams related to chapter 8, a journey through the states of water, and then we will follow it with NCERT question and answers. So let us start with exam pro section. Question number 1. A bowl of water is kept under shade of a tree. After a while, the water disappears from the bowl. Explain. Disappear हो गया यानी कि मैजिक हो गया? नहीं ना, साइंस का मैजिक विदाउट लॉजिक कभी होता ही नहीं. तो साइंस का लॉजिक क्या है इसमें? बेसिकली होता है इसमें इवेपोरेशन. अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में बोल तो है नहीं, तो फिर इवेपोरेशन कैसे हुई? देखिए, इवेपोरेशन निरंतर होती है, हमेशा होती है, क्योंकि बोल के अराउंड जो एयर है ना वो वार्म है, तो वार्म एयर से इवेपोरेशन हो जाती है एंड द वाटर जस्ट disappears, right? Let us mark. Though the bowl of water is kept under the shade of a tree, air around the bowl gets heated by sunlight. So air is heated by what? Sunlight. Now this warm air provides heat for evaporation, and then evaporation is a process wherein water is converted into water vapor. So water is converted into water vapor gradually, धीरे धीरे, and then it disappears from the bowl. It disappears from the bowl. Now let us go on to question number 2. Why do we feel a cool sensation on the skin after sweating? इसका भी आंसर छुपा है इवेपोरेशन टर्म में. सो इवेपोरेशन कैसे? जैसे स्वेट होती है ना, वो स्किन के सरफेस पे आ जाता है, और स्किन के सरफेस पे आता है तो वहाँ पे इवेपोरेशन हो जाती है स्वेट की, क्योंकि सनलाइट, हीट ऑफ द एयर तो है ही है, तो इवेपोरेशन होती है. एंड यू नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. सो दिस इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्वेट caused due to evaporation. So sweat evaporates from our skin. So the key word here is evaporates. The process of evaporation requires energy, we all know that, which it takes from the heat of our skin, making our skin feel cold. Now question number 3. कंपेयर इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. बॉइलिंग के बारे में आपने पढ़ रखा है इन द टेम्परेचर चैप्टर, तो इनको कंपेयर करना है, और कंपैरिजन के क्वेश्चंस मैंने पहले भी बोल रखे हैं. आपको कैसे करने हैं कंपैरिजन के क्वेश्चन? आपको टैबुलेट करने हैं आंसर्स को, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर. निरंतर होता है. बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होता है, एट डेफिनेट टेम्परेचर. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. Now we go on to the second point. Evaporation is a surface phenomena. You all know that. It takes place at the surface of the liquid, right? और boiling का क्या है? Boiling takes place throughout the liquid, throughout the bulk of the liquid. Boiling takes place. Now we go on to point number 3. Point 2 हो गया. So point 3 is evaporation leads to fall in liquid temperature. You all know evaporation causes cooling, but ऐसा कुछ नहीं है in boiling. Boiling में क्या होता है? आपने कर भी रखा है वर्चुअल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मैंने करवाया था. क्या कि टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, राइट? नाउ पॉइंट नंबर 4. इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस. धीरे धीरे होता है. बॉइलिंग क्या है? इज अ फास्टर प्रोसेस इन कंपैरिजन टू इवेपोरेशन. आई होप द कंपैरिजन टेबल इज क्लियर टू यू. अगर आप चाहते हैं ना तो एक स्क्रीनशॉट जरूर इसका ले लें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. Now we go on to question number 4. How is dew formed? Dew is formed due to condensation. हमने बहुत सारा evaporation के बारे में पढ़ लिया. Now we go on to condensation. So dew is formed due to condensation, and condensation is what? Condensation is the conversion of water vapor into liquid droplets. देखिए, जब environment ठंडा होता है ना तो क्या होता है? water vapor is converted into liquid droplets, right? और जब environment ठंडा होता है तो जो cold surfaces पे ये liquid droplets आके
चिपक जाते हैं। तो दिस इज हाउ ड्यू इज फॉर्म्ड। चिपकते हैं मतलब टेम्परेरी चिपकते हैं। सो ड्यू इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन. So when there is a drop in the temperature, it causes the water vapor in the air to change from gaseous state to liquid state, right? और वो liquid droplets they are formed on exposed surfaces like grass, leaves, etc. तो ये जो liquid droplets है ना, gaseous state से liquid droplets में convert हुए, now they are formed on the exposed surfaces, exposed cool surfaces like grass, leaves, etc. So the key word over here is condensation. Condensation से dew form होता है. Now question number 5 which is very important. इसके कई रूप है. question number 5 के कई रूप है. या तो आपको पूछा जा सकता है direct question, what is water cycle, explain the steps of water cycle. या फिर आपको पूछा जा सकता है what causes rain. Otherwise you can be asked how are clouds formed. तो देखिए हाउ आर क्लाउड फॉर्म में आप पूरा वाटर साइकिल नहीं डिस्क्राइब करेंगे. हाउ आर क्लाउड फॉर्म मतलब क्या, इवेपोरेशन प्रोसेस एंड कंडेंसेशन प्रोसेस, बस कंडेंसेशन तक आपको डिस्क्राइब करना है. देखिए ये फिगर देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से. पहले मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए, बट कैन एक्सप्लेन इट अगेन. सो हियर यू हैव द वाटर बॉडीज, राइट. वाटर इन द वाटर बॉडी in the presence of heat, it gets converted into water vapor. Evaporation takes place. You all know evaporation is conversion of water into water vapor. Evaporation होगी. अब next step पे आ जाते हैं which is condensation. कैसे होगी evaporation से condensation कैसे होगी? अब ये जो water vapors हैं वो ऊपर आते हैं cool atmosphere में, they get converted into liquid droplets. So the conversion of water vapor to liquid droplets is कंडेंसेशन. तो क्लाउड कैसे फॉर्म हुई, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स दे आर फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स एंड दे क्लम्प टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड, राइट. तो ऐसे क्लाउड्स फॉर्म हो गए. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेसिपिटेशन. ओके, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे बिकम सो हैवी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दे विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड इन ईदर रेन, hail or snow form. So now the water bodies are replenished और थोड़ा सा पानी जो है वो अंडरग्राउंड सीपेज हो जाती है, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है. ठीक है, अब फिर से ये प्रोसेस होता है. इवेपोरेशन हो गई, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, अगेन इवेपोरेशन. तो ये एक बिग साइकिल है, राइट. तो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म में आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन तक का ही देना है. तो फॉलो विद मी. Rain forms as part of the water cycle. The sun heats water from water bodies, causing it to change into water vapor. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ evaporation हो गई, यानी कि water is converting into water vapor. And now the next step, condensation. As the water rises through the atmosphere, it cools and forms clouds made of tiny water droplets called condensation. तो हमने पढ़ लिया about evaporation and condensation. Now the next step is precipitation, as I have already explained. Precipitation में क्या होता है, these droplets become heavy and they fall back to earth is as rain, snow or hail. Water that falls to the ground collects in the water bodies and some soak in the ground as groundwater. So now this collected water is now ready to be evaporated again, condensed again and precipitated again. So this cycle goes on and on. Now question number 6. How water kept in an earthen pot becomes cool during summer? During the explanation of the chapter, I had explained it to you. So what happens, earthen pot में छोटे छोटे pores रहते हैं, इतने छोटे कि उसमें से water leak out नहीं करता, but थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो surface पे ज़रूर आ जाता है. और surface पे आता है, hot summer day है, evaporation होती है and evaporation is a process that requires energy. और थोड़ा सा heat energy जो है वो water से लेगा, kept in the pot. When the temperature comes down of the water, क्योंकि heat energy is carried away,
सो व्हेन द टेम्परेचर कम्स डाउन वाटर का, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर कम हो गया तो कूल हो जाएगा पानी, राइट. So wall of the earthen pot has tiny pores through which some water seeps. Now heat from the sun converts water into water vapor. तो यहाँ पे evaporation हो रही है. So evaporation requires heat which is draws from the pot and the water inside it. Hence water kept in earthen pot becomes cool. Now question number 7. How would you obtain the 3 states of water? तो आइस से शुरू करते हैं. आइस से शुरू करेंगे तो आइस को अगर मेल्ट कर दिया ना तो क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा. वाटर को फर्दर मैंने बॉईल कर दिया तो क्या होगा, वाटर वेपर फॉर्म होगा. तो इस हिसाब से मैंने 3 फॉर्म्स ऑब्टेन कर लिए. सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर फर्स्ट. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. Now if we heat ice, it melts and gets converted into water. On further heating, water gets converted into what? Into water vapor. Now we go on to question number 8. How would you increase the rate of evaporation? तो पहले तो आप ये डिस्कस कीजिए कि फैक्टर्स क्या है that affect the rate of evaporation. Rate of evaporation can be increased by increasing the temperature of the liquid. Yes. Why? Because more the temperature, more is the rate of evaporation. Increasing the surface area, because more the surface area, more is the rate of evaporation. Increasing the wind speed, because more is the wind speed, more is the rate of evaporation. And also by decreasing humidity. Decreasing humidity also increases the rate of evaporation. तो क्यों है the hows and whys I have already explained when I had explained the chapter. Video link description box में है, kindly go through that. Question number 9. 71% of the earth is covered with water. Almost about 71%. Then why is the need for conserving water? इतना सारा है पानी हमारे पास, तो क्या ज़रूरत है पानी कंजर्व करने की. देखिए 71% तो है अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, लेकिन 97% ऑफ दैट वाटर इज सॉल्टी, खारा पानी है. तो उस खारे पानी को ना हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते. तो बाकी बचे कितने, 3%, और वो 3% में 2% इज़ इनएक्सेसिबल, और बाकी क्या बचा, ऑलमोस्ट ओनली 1%. और उस 1% से आपको सब कुछ करना है, आपको क्लीनिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्री का सारा काम सब कुछ करना है, और वो 1% भी कम पड़ जाता है. पता है क्यों? Because population is increasing, our demands are increasing, our development needs are increasing. So it is very important for us to judiciously use water and conserve it. So question number 10. Explain the interconversion of states of water. ये फिगर आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले फिगर बनाना है एंड देन यू गो ऑन एक्सप्लेनिंग अबाउट द फिगर. तो एक एक पॉइंट ले लेंगे ना, उससे आंसर अच्छा बन जाएगा. सी सॉलिड फॉर्म है आइस, राइट. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस. वी स्टार्ट विद आइस. आइस की मेल्टिंग से वाटर फॉर्म हो रहा है, और वाटर के इवेपोरेशन से गैस यानी कि वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है. मतलब यहाँ पे हम क्या करें, बेसिकली वी आर सप्लाइंग हीट, राइट. आइस को भी हीट सप्लाई किया, वाटर को भी हीट सप्लाई किया. तो आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर. अब देखिए, अब उल्टा करते हैं, वाटर वेपर से स्टार्ट करते हैं. वाटर वेपर टू वाटर कैसे ऑब्टेन करेंगे, थ्रू कंडेंसेशन. तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडेंसेशन का यूज़ किया. नाउ वाटर को हमने फ्रीज कर दिया, फ्रीजिंग. फ्रीजिंग से हम क्या करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग इनटू आइस, वाटर इनटू आइस. तो अभी हम पीछे चले गए. सो व्हाट वी आर यूजिंग, हीटिंग और कूलिंग. वी आर यूजिंग कूलिंग, राइट. तो इसे हीटिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस से हमारा इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर इज पॉसिबल. नाउ वी गो ऑन टू डिस्कस NCERT क्वेश्चन एंड आंसर्स. So let us enhance our learning. Question number 1.
Which of the following best describes condensation? तो इन 4 ऑप्शंस को देख लीजिए. कंडेंसेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है द फोर्थ ऑप्शन. Question number 2. Identify in which of the given processes evaporation is very important. Coloring with crayons, watercolors, acrylic colors और pencil colors. जिनमें वाटर इन्वॉल्व है ना, उनको इवेपोरेट करना है, वरना कलर कैसे आएगा पेपर पे, राइट? सो वाटर कलर्स और एक्राइलिक कलर्स में इवेपोरेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइटिंग ऑन पेपर विद पेंसिल, इंक पेन, बॉल पॉइंट पेन. अब इनमें से इंक पेन है जिसमें पानी का कंटेंट रहता है, इस वजह से इवेपोरेशन इन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास एट मेनी प्लेसेस these days and space around natural grass feels cooler than space around the plastic grass. Can you find out why? ऑब्वियसली प्लास्टिक ग्रास तो लिविंग नहीं है ना, और नेचुरल ग्रास जो है वो लिविंग है. इवेपोरेशन ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द लीफ, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. तो इस वजह से सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रास लीव्स आर वेरी कूल, and that is why natural grass feels much cooler than space around the plastic grass. Question number 4. Give examples of liquids other than water that evaporates. So what are the liquids other than water that evaporates? Milk, alcohol, ये दोनों liquids हैं जो evaporate करते हैं other than water. Now fans move air around, creating a cool sensation. It might seem strange to use a fan to dry wet clothes since fans usually make things cooler, not warmer. Normally when water evaporates, it requires heat, not cold air. What do you think about this? So what happens? जब फैन घूमता है ना तो वो एयर को भी सर्कुलेट करता है, एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. एंड यू हैव ऑल स्टडीड दैट मोर द विंड स्पीड मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. यानी कि विंड से क्या होता है, जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ओवर द सरफेस ऑफ द वेट क्लोथ्स दे विल मूव फास्टर, and that will accelerate, that will increase the rate of evaporation. They will escape into the atmosphere much faster. So question number 6. Usually when sludge is removed from drains, it is left in heaps next to the drain for 3 to 4 days. Afterwards, it is transported to a garden or field where it can be used as manure. Now this approach reduces transportation cost of the sludge and enhances the safety of the individuals handling it. Reflect upon it and explain how. देखिए स्लज जो है रिमूव किया जाता है ड्रेन से, फिर 3-4 दिन के लिए इसलिए रखा जाता है जिससे जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए स्लज से. एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, एक बार पानी इवेपोरेट हो गया, द स्लज बिकम्स ड्राई एंड लाइट वेट, एंड ऑल्सो हैंडलिंग वाले जो है उनको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं. एंड दैट इज वाई स्लज इज रिमूव फ्रॉम द ड्रेन, और 3 to 4 days के लिए उनको रखा जाता है. So question number 7, observe the activities in your house for a day. Identify the activities that involve evaporation. How does understanding the process of evaporation help us in our daily activities? देखिए हमें पता है evaporation होती है मतलब water is converting into water vapor. हमें ये भी पता है कि इस प्रोसेस में लगती है एनर्जी. तो इसको यूज करते हुए, इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो कपड़े सुखाने का एग्जाम्पल लेते हैं. रोज रोज हम कपड़े धोते हैं और सुखाते भी हैं, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम वाटर भी बॉईल करते हैं रोज, या तो चाय बनाने के लिए या नॉर्मल जस्ट वाटर बॉईल करने के लिए. थर्ड एग्जाम्पल, वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, ऑन द रोड टू मेक इट कूल, राइट. अगेन एक्सप्लॉइटिंग इवेपोरेशन प्रोसेस. सैनिटाइजर का यूज करते हैं, इवेपोरेट हो जाता है सैनिटाइजर, फिर कैसा ठंडा ठंडा लगता है ना हाथों में. एंड देन वी ऑल्सो यूज इवेपोरेशन, पापड़ सुखाने के काम में भी आता है, राइट.
तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इवेपोरेशन का यूज आप करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर? या तो आइस के फॉर्म में, या हेल के फॉर्म में, या फ्रॉस्ट के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट रहता है वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट water is our responsibility before it is our right. Share your thoughts. Obviously हमारा right है, as living beings we have right on our natural resources. लेकिन being the most intelligent species we also have the responsibility of saving it. क्योंकि हम ही ऐसे species हैं जो सबसे ज़्यादा water को exploit करते हैं for our own needs. इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम कंजर्व करके रखें. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑलमोस्ट अबाउट 1% इज़ फिट फॉर यूसेज, और उसी 1% से हमें सारी एक्टिविटीज़ करनी है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है, तो इनको ध्यान में रख के कंजर्व भी हमें ही करना है पानी को. क्वेश्चन नंबर 10 and the last question. The seat of a two-wheeler on a sunny day has become very hot. How can you cool it down? वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं सीट पे. थोड़ी देर बाद हम नोटिस करेंगे कि वाटर इवेपोरेट हो गया और सीट जो है वो कूल हो गई. या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम डैम्प कपड़ा, डैम्प क्लॉथ सीट पे लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर हटा देंगे, एंड देन वी विल वेट फॉर द वाटर टू इवेपोरेट. दैट ऑल्सो कॉजेज कूलिंग. Any doubt, any query, please do comment or contact at datta.anveshabiotech@gmail.com. New videos are always uploaded every week. Do subscribe and never miss out on any notification. Bye bye students, happy learning.